Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of Supergrid SCAT. Today, we are going to do a very important topic, which is pipe and cistern for the upcoming CMAT examination. We are going to know the basics of this topic, and then later on, we'll practice some important questions over it as well. So, let's try to begin this. And with this, the first thing is the topic is exactly similar to time and work. You might have done some time and work problems. So let me show you one how it is exactly similar to that. In time and work, what happens if A does a work in 10 days? If A does a work in 10 days and B do the same work in 20 days, then we can assume the total work is 20, the LCM of both. So A can do this 20 work, what we have assumed as the LCM of 10 and 20. A can do this 20 job in 10 days. So his per day work or his efficiency, the amount of work he do in a day is basically his efficiency. 20 in 10 days, so plus 2 efficiency. B can do 20 job in 20 days, so efficiency of plus 1. So if I want to know in how many days they can do it together, in how many days they together can do the same job, in how many days they together can do the same job. So you will say, so 20 job with their combined efficiency of 2 plus 1 can be done in 20 by 3 days. Just by changing the analogies, just by changing the, what do you say, the language, the same problem can be done in the pipe systems as well. Like A was a man, here I am changing it with a pipe P1, pipe P2. Pipe P1 can fill a cistern in 20 hours. Pipe P2 can fill a tank or cistern in 30 hours. पाइप P1 किसी सिस्टम को 20 आवर्स में फिल कर सकता है. पाइप P2 can fill the same system in 30 hours. So you can assume your tank capacity as LCM of 20 and 30, 60 liter. Here we were assuming it as a work. In time and work, it was a work, and here it is the capacity of the tank. Capacity of tank or cistern, whatever is given in the problem. These were the individual efficiencies of man. They were the efficiencies of man. So what is wrong over here? They are the efficiencies of pipe. 60 liter in 20 hours, 3 liter per hour. And this is 2 liter per hour. So they are the efficiencies of pipe. P1 and P2. Pipe 1 has an efficiency of 3 liter per hour, whereas pipe 2 has an efficiency of 2 liter per hour. So if I ask you, in how much time both pipe together can fill the complete tank? So you will say, sir, a 60 liter tank with the individual efficiencies of 3 plus 2, 5 liter per hour can be filled in 20 hours. The only point to be noted down over here is generally in time and work, the people are just doing the work. However, there has been instances where destroying the work has also been used in certain time and work problem, but generally they are not. But in pipe and cistern, there would be drain pipes as well. There would be drain pipes as well. So filling pipes is going to have a positive efficiency because they are filling the they are filling the tank, whereas drain pipes is going to have a negative efficiency. Just take care of this. Everything else is same. Just take care of this point कि drain pipe is going to have a negative efficiency as well. So इस बात को ध्यान रखते ही आपकी जो errors हो जाते हैं time and work से pipe and cistern switch on होने में, those errors can be avoided. That for filling pipes, we will take a positive efficiency because they are filling the tank, and for drain pipes, we will take the negative efficiency because they are not filling the tank. They are basically emptying the tank. ये negative work कर रहे हैं. They are not doing the positive work. They are doing a negative work. Okay.
लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस ओवर इट। ये मानते हुए कि इतनी एप्लीकेशन से ही अगर हम 8-10 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बना लें तो वी कैन डू अवर प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल। Two pipes can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. A drain pipe can empty the cistern in 20 minutes. How long will it take to fill the cistern if three pipes are opened at the same time? अगर तीनों पाइप को एक ही टाइम पर खोला जाए तो कितनी देर में फिल हो जाएगा? तो पहला पाइप ए 12 मिनट में फिल कर देता है, सेकेंड पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट्स, एंड थर्ड ड्रेन पाइप, आई एम गिविंग इट अ नेम ऑफ ए, 20 minutes. Don't forget to keep the negative sign over the drain pipe. बिकॉज जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी होती जाएगी तो प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपरली ड्रेन पाइप के ऊपर एटलीस्ट नेगेटिव लगा दें। अगर फिलिंग पाइप के ऊपर पॉजिटिव नहीं भी लगा रहे हो तो चलेगा, बट ड्रेन पाइप के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव लगा दें। 12, 15, 20 एलसीएम 60 लीटर, सो 60 लीटर इन 12 मिनट्स 5 लीटर पर मिनट। नॉट ऑलवेज, नाउ दिस यूनिट इज नॉट दैट मच नेसेसरी कि मैं हर बार उसको +5 की जगह 5 लीटर पर मिनट लिख के दिखाऊं। इट्स +5 इज सफिशियंट, ओके। +4 and -3. -3. 60 liter in 20 minutes. Emptying pipe, so -3. Drain pipe, so -3. अगर तीनों को सेम टाइम पर ओपन किया गया है तो टैंक कितनी देर के बाद भर जाएगा? So your tank is 60 liter. If all of them are working together, what is their combined efficiency? +5, +4, -3. So it will take 10 minutes. क्वेश्चन मिनट्स में था तो अल्टीमेटली यहां से जो आंसर आएगा वो भी मिनट में आएगा। और अगर आप ये लीटर पर मिनट लिख के चलते तो आपको ये भी समझ में आता कि मिनट में क्यों आ रहा है। बट सिंस वी डोंट वांट टू गेट इनटू एवरी टाइम राइटिंग लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, देन लीटर लीटर विल कैंसिल एंड मिनट विल रिमेन, वो आप डायरेक्टली समझ जाओगे 60/6, 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो इतना ही आसान होता है। लेट्स ट्राई वन ऑड प्रॉब्लम। कम ऑन। 1/4 of a tank can be filled in 3 hours by the pipe X. 1/3 of the tank can be filled in 3 hours by X. तो अगर 1/3 फिल करने में 4 घंटे लग जाते हैं, 1/4 फिल करने में 3 आवर्स लग जाते हैं, तो पूरा फिल करने में कितना लगेगा? 12 आवर्स। तो कैन आई से X कैन फिल द कंप्लीट टैंक इन 12 आवर्स? X कैन फिल द कंप्लीट टैंक इन 12 आवर्स, बिकॉज अगर 1/4 में 3 घंटे हैं तो पूरा में 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 3, 12 आवर्स। और अगर 1/3 में 2 घंटे लग जाते हैं y के द्वारा तो फिर पूरे में 1/3 में अगर 2 घंटे लग जाते हैं तो पूरे में 6 घंटे। सो नाउ दिस डेटा इज सेइंग कि x कैन फिल द कंप्लीट टैंक इन 12 आवर्स एंड y कैन फिल द कंप्लीट टैंक इन 6 आवर्स। सो आई एम अज्यूमिंग द टैंक एज एलसीएम ऑफ बोथ 12 लीटर। x efficiency 12 liter in 12 hour plus 1, y efficiency 12 in 6, 2. How long will it take for the tank to be filled if both are opened together? So if you want them to be filled by both of them together, तो 12 liter का tank with the combined efficiency of 3 can be filled in for, this was very easy. Yeah, मतलब ये तो उतना आसान था कि easy को भी लगे कि भाई इससे आसान क्या हो सकता है। Let's move on. Come on. Now from this moment onwards, I would be expecting the answers कि आप लोगों के आंसर्स आने लगेंगे अब। X can fill the tank in 36, Y can fill in 45, but a waste pipe jet can empty it in 30. तो लिख लो X can fill it in 36, Y can fill it in 45, and Z can
एम्प्टी इट इन 30, नेगेटिव लगा लिया है मैंने। सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ो फॉर द एलसीएम, क्विक एलसीएम, फॉर द क्विक एलसीएम। 45 टू जा 90, 36 प्रॉब्लम करेगा। 90 टू जा 180, 180 पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। 180 लीटर इज द टैंक व्हाट आई अज्यूम्ड। आई अज्यूम द टैंक टू बी 180 लीटर। ये फिलिंग है, ये फिलिंग है, ये एम्प्टी है। 180 लीटर इन 30 माइनस 6 एफिशिएंसी, 180 इन 45 प्लस 4, 180 इन 36 प्लस 5। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्स और वाई को ओपन किया गया है और 7 मिनट के बाद जेड को भी ओपन कर दिया है। तो इन द फर्स्ट 7 मिनट्स ओनली एक्स एंड वाई आर फिलिंग। व्हाट इज देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज टुगेदर? प्लस 5 प्लस 4। तो बेसिकली 9 की एफिशिएंसी 7 मिनट में 63 लीटर पानी भर दिया होगा। 9 की एफिशिएंसी से 7 मिनट में 63 लीटर पानी भर दिया होगा। हाउ मच इज रिमेनिंग? एक बार देख लेते हैं। 180 माइनस 63, तो इट इज 117 लीटर अभी भी भरना है भाई। व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर 7 मिनट्स? जेड इज ऑल्सो ओपन, मतलब जेड को और ओपन कर दिया है। एक्स एंड वाई आर ऑल्सो ओपन या। सो 7 मिनट के बाद तीनों की तीनों पाइप एक साथ दे विल डू देयर वर्क। What is efficiency of x? Plus 5. What is efficiency of y? Plus 5. This is minus 6. Still they have a positive efficiency. इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। Still they have a positive efficiency. तो अब जो बचा हुआ पानी है वो भी भर जाएगा। टाइम कितना लगेगा देख लेंगे। जो बचा हुआ पानी है वो भी भर जाएगा। तो 117 बचा हुआ है and their combined efficiency is plus 3. So they are going to take 39 minutes from here onwards. इन 7 मिनट के बाद अभी 39 मिनट्स और लगने हैं। इन 7 मिनट के बाद अभी 39 मिनट्स और लगने हैं। बट दे आर नॉट आस्किंग कि अभी कितना और टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगा टैंक को फिल होने में? टोटल टाइम टू द टैंक टू गेट फिल्ड। सर 7 मिनट पहले वाले, 39 मिनट्स बाद वाले, टोटल 46 मिनट्स में बात बन गई। टोटल 46 मिनट्स में बात बन गई भाई। बिकॉज पहले 7 मिनट में 63 लीटर पानी भरा जा चुका था। उसके बाद 117 लीटर अभी और भरना है। साथ में जेड आ गया है। जेड एक ड्रेन पाइप है, उसने एफिशिएंसी को आके कम कर दिया। जो एफिशिएंसी +9 जा रही थी वो अब सिर्फ +3 बची है। तो इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। 39 मिनट्स और लग जाएंगे। 7 मिनट पहले एक साथ काम किया था। टोटल 46 मिनट्स। लेट्स मूव ऑन। रीड इट आउट। X can fill a tank 3 times as fast as Y. Together, two pipes can fill the tank in 48 minutes. The slower pipe would be able to fill the tank in how many minutes? Okay. X is 3 times as fast. तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बता रखा है 3 times as fast. Together, they can fill the tank in 48 minutes. What is their together efficiency? 4. What is their together efficiency? 4. Can fill it in 48 minutes. So how much is the capacity of tank? 192 liter. 4 की एफिशिएंसी से अगर कोई काम 48 मिनट्स में हो जाता है, सो वी कैन से आवर टैंक इज 4 into 48, दैट इज 192 लीटर। एंड वी वांट कि स्लोअर वाला पाइप से कितनी देर में भर लेगा, विच इज अ स्लोअर पाइप, वाई। 192 लीटर का टैंक विद द एफिशिएंसी ऑफ 1 कैन बी फिल्ड इन 192 मिनट्स। इजी पीजी, इजंट इट? कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ 4, 48 मिनट्स, 192 लीटर टैंक ने आपने माना वाई से फिल कराना है, बिकॉज वाई इज अ स्लोअर पाइप। उसकी एफिशिएंसी कम है, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो स्लोअर होगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो फास्ट होगा। लेट्स मूव ऑन। A can fill a cistern in 12 minutes.
B can do it in 15 minutes. Assume the tank is 60 liter. Both are filling plus 5 plus 4. Both are open together. But at the end of 3 minutes, A is closed. तो दोनों को एक साथ खोला गया. So when they were open together, they were having a combined efficiency of 9, 5 plus 4. 27-liter water is being filled. So still how much is remaining? 33 liter is remaining. Still how much water is remaining to be filled? 30 liter. किसको बंद किया? A. तो किसको भरना पड़ेगा? B को. You're closing A, so this is needed to be filled by B. B has an efficiency of 4. So he will take his own sweet time, which is about 8 4 जो 38, 8 4 जो 32. इतना टाइम अभी ले लेगा और. So I think they are not asking the total time. They are only asking कि how many more minutes will we take. तो बस 33 लीटर पानी बचा हुआ है, बी को भरना है. बी का एफिशिएंसी 4 है, तो 8 बाय 4, 33 बाय 4, 8 1 बाय 4 मिनट्स अभी और लगेंगे टैंक को फिल करने में. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. P can fill a tank in 6, Q can fill it in 8. Both pipes are open together. After how many hours Q को बंद किया जाए so that टैंक 4 घंटे में फिल हो जाए. देखो इसको बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, और प्लीज आप इसको 2 बार सुन लेना इफ इट इज रिक्वायर्ड. बोथ आर फिलिंग पाइप. So I've assumed the tank is 24 liter. The LCM of both 6 4 ja 24, 8 3 ja 24. So P and Q efficiencies are plus 4 and plus 3 respectively. P और Q की जो efficiencies हैं वो plus 4 और plus 3 आ गई हैं. दोनों पाइप को एक साथ खोला गया. कितने घंटे के बाद Q को बंद करना चाहिए so that tank is full in 4 hours. कैसे इंटरप्रेट किया मैंने इस प्रॉब्लम को कि आप कौन से पाइप को बंद कर रहे हो? Q को. यू आर क्लोजिंग विच पाइप? Q. तो फिर P तो लगातार चल रहा है. P is working from the starting till the end. अब अगर P टैंक इज गेटिंग फिल्ड इन 4 hours, इसका मतलब P भी 4 घंटे तक लगातार काम कर रहा है. तो प्लस 4 की एफिशिएंसी से P 4 घंटे में 16 लीटर पानी तो P के द्वारा ही भर दिया गया. जस्ट थिंक व्हाट आई एम सेइंग कि अगर टैंक 4 घंटे में फिल हो रहा है, P स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, बिकॉज P को तो बीच में कभी बंद ही नहीं किया. इसका मतलब P इज फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड. तो P इज वर्किंग फॉर 4 hours. प्लस 4 की एफिशिएंसी 4 घंटे में 16 लीटर पानी तो इसका ही दो है. तो बचा हुआ सिर्फ 8 लीटर जो है वो Q ने फिल किया है. Q भाई की एफिशिएंसी थी 3, तो 8 2 जा 6. तो Q was only working for 8 by 3 hour. Q सिर्फ 8 by 3 आवर ही काम किया है. पूछा गया है Q को कितनी देर के बाद बंद किया जाए. Q को कितनी देर के बाद बंद किया जाए. जब वो स्टार्टिंग से है और सिर्फ 8 by 3 आवर्स तक ही उसने पानी भरा है, तो उसको फिर 8 by 3 आवर्स के बाद ही बंद करना चाहिए इफ यू वांट दिस कंडीशन टू हैपन. तो आंसर हमने रिवर्स एनालॉजी लगाई. क्या लगाई भाई? रिवर्स एनालॉजी. कैसे सोचा? ऐसे सोचा कि अगर टैंक 4 घंटे में भर रहा है तो ए भी 4 घंटे तक फिल कर रहा है. ए की एफिशिएंसी पता है, सॉरी ए का मतलब मेरा पी से है. अब पी की एफिशिएंसी पता है, 4 घंटे तक फिल कर रहा है. 4 की एफिशिएंसी 4 घंटे, 16 लीटर पानी तो पी ने ही भर दिया. ओके. तो बचा हुआ पानी 24 माइनस 16, 8 लीटर ही सिर्फ क्यू ने भरा है. क्यू की एफिशिएंसी प्लस 3 है, तो 8 बाई 3 आवर में भर देगा. स्टार्टिंग से है, 8 बाई 3 आवर तक भराना है, तो 8 बाई 3 आवर्स के बाद बंद किए. चलो, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट. ए 10 आवर्स में फिल कर देता है, बी 12 आवर्स में,
सी भी 20 है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है। 60 लीटर, ए एफिशिएंसी +6, बी +5, सी +3। तीनों को एक साथ स्टार्ट किया बट फर्स्ट को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया। तीनों को एक साथ स्टार्ट किया बट फर्स्ट को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया। एंड थर्ड इज क्लोज 3 hours बिफोर द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड। फिर से वही स्ट्रेटजी लगाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी। ए भी कुछ देर के बाद बंद हो रहा है, सी भी बंद हो रहा है, बट कब? कब? जब टैंक भरने वाला था उससे 3 घंटे पहले, विच इज नेवर क्लोज्ड। कौन सा ऐसा पाइप है जिसको कभी बंद नहीं किया गया? बी। तो लेट बी वर्क फॉर एक्स आवर्स, लेट बी वर्क फॉर एक्स आवर्स। आपने कहा लेट सपोज ये एक्स आवर्स तक काम करता है, तो जितनी देर बी काम करेगा उतनी ही देर में टैंक भर जाएगा, बिकॉज बी इज वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। तो इफ बी इज वर्किंग फॉर एक्स आवर्स, सी उससे 3 घंटे पहले, तो सी इज वर्किंग फॉर x-3। और ए तो स्टार्टिंग से 2 घंटे के बाद ही बंद कर दिया गया था, ए तो स्टार्टिंग से 2 घंटे के बाद ही बंद कर दिया था, तो टोटल वर्क डन बाय ए इज ओनली फॉर 2 hours। 6 की एफिशिएंसी 2 घंटे, 12 लीटर ए ने पानी भरा है। 5 की एफिशिएंसी एक्स आवर्स टाइम 5x इसने भरा है। 3 की एफिशिएंसी x-3 इसने भरा है। टोटल 60 लीटर पानी भर गया। 12 + 5x + 3x - 9 is 60। 8x + 3 is 60। So x is 57, x is 57 by 8। 8 7 जा 56, 1 by 8। 8 7 जा 56, 1 by 8। तो B जो है वो 7 1 by 8 आवर्स तक ऑन रहा है टू मेक दिस हैपन। और जितनी देर B ऑन रहा है उतनी ही देर में टैंक भरा गया है, बिकॉज बी वॉज वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। तो बी ने जितनी देर वर्क किया उतनी ही देर में टैंक फिल हुआ, एंड दैट इज अवर आंसर। गुड वन, प्लीज डू रिवाइज इट आफ्टरवर्ड्स। One more. In a water tank, there are 11 pipes connected. Some of them are inlet and some of them are outlet. उसमें से कुछ inlet है, कुछ outlet है. An inlet can fill the tank in 7 hours. An outlet can empty it in 5 hours. ध्यान रखना भाई. If all the pipes are kept open, it takes 7 hours to empty the tank. ठीक है? Find the number of inlet pipes. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह देखा गया है। इनलेट वाला जो है वो 7 घंटे में टैंक को भर देता है, और आउटलेट वाला जो है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। आई एम अज्यूमिंग 35 लीटर एज द टैंक। सो इनलेट हैज द एफिशिएंसी ऑफ +5, आउटलेट हैज द एफिशिएंसी ऑफ -7। कूल। इनलेट, एक इंडिविजुअल इनलेट की एफिशिएंसी +5 है और एक इंडिविजुअल आउटलेट की एफिशिएंसी -7 है। सारे के सारे पाइप अगर ओपन रखे जाए, ऑल इनलेट्स एंड ऑल आउटलेट्स, तो 7 घंटे में टैंक एम्प्टी हो जाता है। 35 लीटर का टैंक अगर 7 घंटे में एम्प्टी हो रहा है, इसका मतलब इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है? -5। सुनना जरा ये बात, अगर 35 लीटर का टैंक 7 घंटे में एम्प्टी हो जा रहा है, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी है? इफेक्टिव एफिशिएंसी -5। Let's suppose the number of inlets are m and number of outlets are n. तो total positive efficiency +5, total negative efficiency 7n, and it is equal to -5। और 7n - 5m is equal to 5, है ना? पॉजिटिव रख लेते हैं। 7 into outlet -5 into inlets is equal to +5। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? m plus n is 11। One more information is given, m plus n is 11। निकालना क्या है? इनलेट। इनलेट मतलब m, तो n की जगह 11 - m रख दो।
इनलेट निकालना है न, इनलेट निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है, तो एन की जगह 11 माइनस एम रख दो। एन की जगह 11 माइनस एम रखा, 77 माइनस 7m माइनस 5 12m इज इक्वल टू 5। इसको इधर भेज दो। 72 इज इक्वल टू 12m, सो m इज 6। इनलेट पाइप कितने हो गए बेटा? 6। और आउटलेट कितने हो गए? 5। इनलेट आर 6, आउटलेट आर 5। तो 6 5 जा 30 की एफिशिएंसी पॉजिटिव, एंड 7 5 जा 35 की एफिशिएंसी नेगेटिव। तो इफेक्टिवली पर आवर -5 की नेगेटिव एफिशिएंसी। तो इसीलिए 35 लीटर का टैंक 5 घंटे में, 7 घंटे में वट एवर खाली हो जाता है। Thank you very much. I hope you might have enjoyed this session. It was a short and a crispy one, but these are the sessions what we are planning for you कि भाई छोटे हों, एक बात हम पूरी करके जाएं। Whatever we are doing, we should try to complete that portion in one particular session. However, as you know, there is no limit to a particular topic. आप 10 क्वेश्चन बनाओ, 20 क्वेश्चन बनाओ, 30 क्वेश्चन बनाओ, 50 क्वेश्चन, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इज बीइंग टेकन केयर बाय अस कि ये वाले क्वेश्चन तो मस्ट डू हैं, इनको तो आप कर ही लो। सो ऑल सच 8 9 10 प्रॉब्लम्स आई हैव ऑलरेडी कैटर्ड। एक बार अगर आप इस सेशन को देख के जाएंगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ चलो, whatever the question will come to your exam, it is on that lines only. You would be able to make it by yourself. Okay, thank you very much. This is our results this year. We have just started, and if I show you one more thing, yeah, that thing was like our the batch for, what do you say, Supercat. Yeah, Supercat 2024 batch also we have launched. The registrations are open, so if you want to prepare for this year CAT along with other management interest test, please do visit our site. Yeah, that is Supergets CAT or Supergets by Top Rankers, uh, and see the batch, see the offerings. Till then, take care of yourself. Have a great time. See you in the next session.